Hello student, myself Rajkumar Jain, Assistant Professor of Electronics and Communication Department, Jaipur Engineering College and Research Center, Jaipur. In this video, I want to explain experiment number 3 of our signal processing lab. The aim of this experiment is generation of exponential and ramp signal in continuous and discrete time domain by using MATLAB. This experiment covered our CO number 1, which is able to generate different continuous and different time signal. So now we first discuss what is the ramp signal and what is the exponential signal. So first in this slide I want to explain ramp function. So what is the ramp function? The ramp function is shown in figure 2.10, which is look like a straight line for positive value of time and give the value 0 for negative value of time. So f of t is defined as f of t equal to 80 for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0. So it is a straight line of slope a. This slope a is called amplitude or magnitude of ramp function. If we put the value of a equal to 1, then this ramp function is called unit ramp function. So the unit ramp function is the ramp function with slope 1 and it is represented by Rt equal to t for t greater than equal to 0, 0 for t less than 0. The figure is shown in 2.11. So it is also a straight line with slope 1 for t greater than equal to 0 and 0 for t less than 0. Similarly, the ramp of magnitude A can be expressed in terms of unit step function because unit step function is also defined only for positive value of time. So we can directly define f of t equal to 80 ut as a ramp function where A is the slope and t ut is the unit ramp function. Now I want to define our second function, the exponential function. In general form, we can put exponential function y equal to a to the power x. But the most important exponential function is y equal to e to the power x, which is more general form. The below graph is also shown y equal to e to the power x, in which the independent variable x and the dependent variable is e to the power x. So this is a increasing exponential. Now by using MATLAB, we can explain programming of both function. So now if we want to write code for both the program, then we must be define both dependent and independent variable. तो सबसे पहले अपन इसमें डिफाइन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना यहाँ पर होगा टाइम. तो टाइम की वैल्यू अपन ने अपनी इच्छा अपन कहाँ से लेके कहीं भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू मैंने ली है -2 से लेके +2 तक, -2 to +2. आपकी इच्छा, आप रेंज कुछ भी ले सकते हो. अब चूंकि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल -2 के बाद -2.01 पे भी डिफाइन होगा, -2.001 पे भी डिफाइन होगा. तो इसके लिए अपन इनकी स्पेसिंग ले लेते हैं 0.01. सो द रेंजिंग फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज -2 to 2 and the spacing between them is 0.01. इसके बाद अपन डिफाइन करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल y. सो y इक्वल टू e to the power 80, where e is the exponential function.
A is the constant, so we initialize the value of constant A equal to 1. So here in the programming हमने ये लिखा हुआ है, t की वैल्यू डिफाइन कर दी -2 से 2, a को अपन ने पुट कर दिया है 1, तो y1 अपने पास आ गया, y1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a मल्टीप्लाई t। इसमें अपन को कई सारे ग्राफ एक साथ प्लॉट करने हैं, दोस्तों अपन ने यूज कर लिया है सब प्लॉट कमांड। तो ये सब प्लॉट कमांड क्या करेगा, अपने अलग अलग ग्राफ को अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड करेगा। तो सब प्लॉट 3,2,1, इट मीन्स we use a matrix of 3 row and 2 column, 3 row and 2 column। और अपन का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको अपन ने प्रोवाइड कर दिया है पोजीशन 1। तो ये एक्सपेरिमेंट अपना प्रिंट हो जाएगा पोजीशन नंबर 1 पे। उसके बाद इसको प्रिंट करवाने के लिए अपन ने कमांड यूज करी है प्लॉट कमांड। प्लॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल t एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y1। उसके बाद आपने डिपेंडेंट वेरिएबल भी ले लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डिफाइन कर दिया है। अब इस एक्स एक्सिस पे क्या प्रिंट होना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या प्रिंट होना चाहिए, इसके लिए अपन ने कमांड यूज की एक्स लेवल, तो एक्स एक्सिस पे आना चाहिए टाइम, वाई लेवल, वाई एक्सिस पे आना चाहिए एम्पलीट्यूड, और टाइटल प्रिंट होना चाहिए कॉन्टिन्यूस टाइम इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। So this is the continuous time increasing exponential signal. Now अब अपन ड्रॉ करना चाह रहे हैं continuous time decreasing exponential signal। तो डिफरेंस सिर्फ एक ही आएगा। अब अपन एक को नेगेटिव कर देंगे क्योंकि अपन ड्रॉ करना चाह रहे हैं y2 इक्वल टू e टू दी पावर -80, और इसको अपन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे सेकंड। तो सब प्लॉट में अपन लिखेंगे 3,2,2। फिर वही प्लॉट करने के लिए कमांड यूज करेंगे प्लॉट t, y2, x लेवल पे टाइम, y लेवल पे एम्पलीट्यूड, एंड टाइटल में अपन देंगे कॉन्टिन्यूस टाइम डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो यहाँ पर अपन ने कॉन्टिन्यूस सिग्नल एक्सपोनेंशियल के प्रिंट करवा दिए, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। सिमिलर यही अपन सारा करेंगे डिस्क्रीट के लिए। तो डिस्क्रीट के लिए अपन टाइम के लिए यूज करेंगे स्मॉल n, और स्मॉल n की रेंजिंग अपन कहीं से भी कहाँ तक दे सकते हैं। मैंने यहाँ -4 से +4 तक इसको डिफाइन किया है, और इनके बीच का जो गैप अपन लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 1 का। तो n -4 to 4, b जो कांस्टेंट अपन ने लिया है उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 1/4 से। ये भी आपकी इच्छा, आप किसी से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो नाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल y3 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल b मल्टीप्लीकेशन विथ n। तो b को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है n के साथ। उसके बाद इसको अपन पोजीशन प्रोवाइड करा रहे हैं थर्ड नंबर की। तो सब प्लॉट में अपन ने लिख दिया 3,2,3। नाउ डिस्क्रीट के लिए अपन कमांड यूज करेंगे स्टेम। तो यहाँ अपन ने कमांड यूज ले ली है स्टेम। कॉन्टिन्यूस के लिए अपन यूज करते हैं प्लॉट। तो स्टेम n, y3। उसके बाद वही किया अपन ने x लेवल पे टाइम, y लेवल पे एम्पलीट्यूड, और टाइटल में अपन ने प्रिंट करवा दिया डिस्क्रीट टाइम इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। सिमिलरली अपन प्रिंट करवाएंगे डिस्क्रीट टाइम डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो डिक्रीजिंग के लिए अपन b को माइनस में कर देंगे -b × n,
और पोजीशन इसको प्रोवाइड करा देंगे 4th नंबर की। तो ये तो अपने हो गए सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद अपन आएंगे रैंप फंक्शन पे। तो रैंप का जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, रैंप फंक्शन टाइम की ओनली पॉजिटिव वैल्यू पे डिफाइन होगा। तो टी, और इस पर अपन ले रहे हैं y5, और यूनिट रैंप अगर लेते हैं विथ स्लोप 1 तो ये उसका ग्राफ आएगा। तो अपन ने t लेस देन 0 पर ये 0 वैल्यू दे रहा है, तो उसके लिए अपन ने एक कांस्टेंट ले लिया x0 और उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ। अब जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y5, उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए t। यहाँ अपन ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नोटेशन यूज किया है, और ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपको मिलना चाहिए 0। तो 0 को डायरेक्ट ना लिख के अपन जो वैल्यू असाइन किया है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे x ऑफ 0। और ये कब आना चाहिए अपने पास, और n लेस देन 0। सॉरी n नहीं, t लेस देन 0। अपन ने कॉन्टिन्यूस के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे t लेस देन 0। वही अपन ने सब प्लॉट काम ले लिया है t, 2, 5। प्लॉट कमांड यूज करेंगे t, y5। सिमिलरली यही काम अपन करेंगे डिस्क्रीट के लिए। तो वहां से अपन ने y6, बस जहां t आ रहा है वहां अपन n काम लेंगे, स्मॉल n। तो इस तरह से अपन कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों के रैंप फंक्शन की प्रोग्रामिंग कर लेंगे। अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो अपन एक बार देखते हैं। तो इसको अपन रन करवाएंगे मैटलैब के अंदर। तो मैटलैब में अपन ने रन करवा दिया, इसको सेव मैंने पहले से ही कर रखा है। तो मैटलैब में इसको रन किया मैंने, और रन किया तो आपको ये वाला फिगर मिलेगा। तो आप इस फिगर को गौर से देख सकते हो। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, दिस इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बोथ फॉर कॉन्टिन्यूस टाइम। इनके नीचे आ रहा है डिस्क्रीट टाइम के लिए दोनों, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। उसके बाद रैंप सिग्नल कॉन्टिन्यूस के लिए, और उसके बाद रैंप सिग्नल डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। तो इस तरह से अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे।